चलिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं. A limited has incurred heavy losses in the past few years. Following is its balance sheet. Balance sheet as on 31st March 2014. Liabilities: equity share capital 9% preference share of rupees 10 each, 10% debenture, interest on debenture, unsecured loan, bank overdraft, sundry creditors total. ओके यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, एक मिनट है, समथिंग इज मिसिंग. एसेट साइड में गुडविल, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग स्टॉक, डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टोटल. The following scheme of reconstruction was approved by the court. Point number 1, intangible and fictitious asset are to be fully written off. ओके मतलब ये वाले assets को क्या करना है, राइट ऑफ करना है. इंटेंजिबल में क्या क्या आता है, गुडविल एंड इंटेंजिबल में गुडविल आता है और फिक्टिशियस में प्रॉफिट एंड लॉस आता है, राइट. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹4 each, fully paid. Debenture holders waived 50% of the outstanding interest on debenture. 80% of the unsecured loan are reduced by 40%. Directors gave 30% to the company on non-refundable basis. Plant and machinery is reduced to ₹1,20,000. Stock and debtors are reduced by ₹15,000 and 20% of the book value respectively. Furniture and fixtures to be reduced by 63,000. Land is appreciated by 300%. There was an unrecorded asset which was sold for 20,000. Preferences are reduced to ₹6 each. 50% of the creditors are reduced to the extent of 50% of their book value. Okay. Prepare only capital reduction account in the books of A Limited. Right. Now see, sometimes they ask you to prepare only capital reduction account, but what I suggest you pass the journal entries also. Journal entries pass कीजिए, नरेशन मत लिखिए, राइट. साथ में अपने को अगर बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट्स बोला है तो सिर्फ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से वो नोट्स टू अकाउंट्स बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा. इज दैट क्लियर? सो वी विल फॉलो अवर पैटर्न. वी विल पास द journal entries, but we will not write any narration, right. And with the help of that journal entry we will prepare capital reduction account and then notes to accounts of only capital and reserves and surplus, capital and reserves and surplus. Is that clear? चलिए, shall I start? कॉलम्स बनाइए जल्दी से. journal entries in the books of A Limited. Journal entries in the books of A Limited. Chile, can I start? Okay. So we will refer point number 1. Point number 1 में क्या बोला है देखिए. Question number 10. Intangible and fictitious assets are to be written off. Intangible and fictitious assets are to be written off. तो इसमें दो है ना, एक गुडविल है और एक प्रॉफिट एंड लॉस है. रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, उसको एसेट साइड से हटा देना है. एसेट साइड से हटा देना है. इज दैट क्लियर? तो अगर वो एसेट्स को हम लोग एसेट साइड से हटा देंगे, राइट, इफ वी विल रिमूव दैट एसेट्स फ्रॉम द
एसेट साइड, राइट। तो बताइए मुझे, एसेट का वैल्यू रिड्यूस होगा, एसेट का वैल्यू रिड्यूस होगा ना, मीन्स इट इज लॉस। लॉस मतलब कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कैपिटल रिडक्शन डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे, कौन से एसेट को हटाने बोला है, गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस। व्हाट विल बी द एंट्री, टेल मी। एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। पहले एंट्री लिख लीजिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अमाउंट क्वेश्चन में से लिखने का, पहले गुडविल का अमाउंट लिखेंगे कितना है, 4,50,000, कितना है 4,50,000, तो गुडविल में लिखेंगे कितना 4,50,000, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट देखेंगे कितना है 4 लाख, कितना है 4 लाख। सो दोनों मिला के 8,50,000, दोनों मिला के 8,50,000, ठीक है। इसमें नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इज दैट क्लियर। So capital reduction account debit to goodwill to profit and loss account. Any doubt? Point number 1 is clear. Shall we take the next one? Okay. Next point में क्या बोला है देखते हैं। Next point में बोला है equity share to be reduced to ₹4 each fully paid. Equity share to be reduced to ₹4 each fully paid. Fully paid means अपने को face value change करना है। क्या change करना है, face value. face value change करना है मतलब 10 वाला शेयर हम लोग वापस ले लेंगे और कितने वाला शेयर इशू करेंगे, 4 वाला। ओके, तो जो शेयर हम लोग वापस ले लेंगे वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है। नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, कैंसिल करना है तो डेबिट, राइट। नया शेयर जो इशू करेंगे वो लायबिलिटी साइड में आएगा, तो उसको क्या करना है, क्रेडिट। ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके, ब्रैकेट में ₹4, और जो प्रॉफिट है वो किस में चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। इज दैट क्लियर। तो एंट्री क्या आएगा बोलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में ₹10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में ₹4 एंड टू कैपिटल रिडक्शन। पहले एंट्री लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग एक एक करके अमाउंट लिखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में ₹10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में ₹4 और टू कैपिटल रिडक्शन, ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट ब्रैकेट में ₹10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू ब्रैकेट ₹4 टू कैपिटल रिडक्शन, राइट। अभी ये जो ₹10 वाला शेयर कैंसिल हुआ है उसका वैल्यू कहाँ से देखेंगे, बैलेंस शीट से। कहाँ से देखेंगे, बैलेंस शीट में, राइट। तो बैलेंस शीट में जाके देखते हैं हम लोग उसका वैल्यू कितना है। तो कितना वैल्यू है उसका, 8 लाख। कितना वैल्यू है, 8 लाख। तो वो 8 लाख यहाँ पर लिख दीजिए, राइट। जैसे ही ये 8 लाख मिल गया, बाकी का वैल्यू अपने को अपने आप मिल जाएगा। 8 लाख डिवाइड बाई 10, 8 लाख डिवाइड बाई 10, नंबर ऑफ शेयर कितना होगा 80,000, और 80,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 3,20,000, 3,20,000। ओके, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे, 8 लाख माइनस 3,20,000 कितना आएगा, 4,80,000, 4,80,000। हाँ, क्लियर है स्टूडेंट्स। ये मैंने क्या किया, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू चेंज कर दिया, ₹10 वाला कैंसिल कर दिया, ₹4 वाला इश्यू कर दिया। जो भी प्रॉफिट आया वो मैंने किस में ट्रांसफर किया, कैपिटल रिडक्शन में। ओके, चलिए शैल वी टेक द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट डिबेंचर्स। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, डिबेंचर्स। क्या बोल रहा है, डिबेंचर होल्डर्स वेव्ड 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स वेव्ड 50% of the outstanding interest, okay, 50% of the outstanding interest on debenture, right। तो अभी देखिए ये डिबेंचर होल्डर है, ये बंदा कौन है, सॉरी 1 मिनट, डिबेंचर होल्डर वेव्ड 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ओके। तो डिबेंचर होल्डर जो है ना वो 50% इंटरेस्ट वेव कर रहा है, राइट। डिबेंचर का इंटरेस्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है ना,
कहाँ पे है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, राइट। तो अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वो इंटरेस्ट है और वो डिबेंचर होल्डर क्या कर रहा है, उसको वेव कर रहा है, क्या कर रहा है? वेव कर रहा है, राइट। तो अगर वेव कर रहा है तो आपका लायबिलिटी बढ़ेगा कि कम होएगा? बोलिए, लायबिलिटी क्या होगा? कम होगा ना। और अगर लायबिलिटी कम होता है, अगर लायबिलिटी कम होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करेंगे। और क्या वेव किया है उसने? इंटरेस्ट। क्या वेव किया है? इंटरेस्ट। तो डेबिट किसको करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्या एंट्री आएगा? बोलिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। पहले एंट्री लिखिए, फिर हम लोग अमाउंट डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, अभी पहले बैलेंस शीट में देखते हैं इंटरेस्ट है कितना। तो इंटरेस्ट कितना है? 50,000 है। कितना है? 50,000। क्या पूरा इंटरेस्ट उसने माफ किया है? कितना माफ किया है? 50%। कितना माफ किया है? 50%। तो 50,000 का 50%, 50,000 का 50% कितना होगा? बोलिए, 25,000। कितना होगा? 25,000। 25,000 इंटरेस्ट उसने माफ कर दिया। चलिए, क्लियर है स्टूडेंट्स? एंट्री नंबर 3 इज क्लियर टू एवरीवन? शैल वी प्रोसीड फर्दर? चलिए, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 या पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया? देखिए, 80% ऑफ द अनसिक्योर्ड लोन आर रिड्यूस बाय 40%, 80% ऑफ द अनसिक्योर्ड लोन आर रिड्यूस बाय 40%, राइट। ये मतलब अभी किसकी बात कर रहा है? अनसिक्योर्ड लोन। किसकी बात हो रही है? अनसिक्योर्ड लोन, राइट। अभी मान लीजिए मैंने आपको बताया कि एक बंदा है जिससे आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है, इससे आपने क्या लिया है? अनसिक्योर्ड लोन। इमेजिन करने का, आपको ने कंपनी है, आपको ने कंपनी है, ये बंदे से आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है, ये बंदे से आपने क्या किया है? अनसिक्योर्ड लोन लिया, राइट। और ये अनसिक्योर्ड लोन जो है उसका कुछ हिस्सा माफ कर रहा है, कुछ हिस्सा माफ कर रहा है। इज इट क्लियर? तो कुछ हिस्सा अगर माफ कर रहा है तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है ना, लोन लायबिलिटी साइड में होता है ना अनसिक्योर्ड लोन। लायबिलिटी बढ़ेगा कि कम होएगा? बोलिए, लायबिलिटी कम होगा ना। और लायबिलिटी कम होगा तो क्या होगा? बोलिए, प्रॉफिट। और प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे? अनसिक्योर्ड लोन। किसको डेबिट करेंगे? अनसिक्योर्ड लोन। एंट्री बोलिए, अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। पहले एंट्री लिखेंगे, अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अमाउंट कैसे निकालना है मैं बताता हूं, पहले एंट्री लिखिए, पहले एंट्री लिखिए, अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। एक्चुअली है ना, मैंने उसको चेंज किया है, आपके शायद पीडीएफ में डिबेंचर है बट इट इज अनसिक्योर्ड लोन एग्जैक्टली। इज दैट क्लियर? बिकॉज इन बैलेंस शीट इट इज अनसिक्योर्ड लोन, बैलेंस शीट में अनसिक्योर्ड लोन है, ठीक है ना। चलिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका अमाउंट कैसे निकालने का देखते हैं, राइट। अभी देखिए वो क्या बोल रहा है, एक्चुअल में अनसिक्योर्ड लोन 75,000 है। कितना है? 75। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि मैं पूरा 75 नहीं माफ करूंगा। इज दैट क्लियर? मैं तुमको खाली 80% पे डिस्काउंट दूंगा। किस पे? 80% पे, राइट। तो अभी 75,000 पूरा नहीं, उसमें से वो किस पे कंसेशन देने वाला है? 80% पे, राइट। तो पहले 75 का 80% निकालो, कितना? 60। 80% निकालो, कितना आया? 60। और ये इसके ऊपर वो कितना माफ कर रहा है? 40%। इसके ऊपर वो कितना माफ कर रहा है? 40%। इज दैट क्लियर? मतलब वो क्या बोल रहा है, मैं 100% पे माफ नहीं करूंगा, सबसे पहले वो किस पे माफ कर रहा है? 80% पे। किस पे माफ कर रहा है? 80% पे। तो पहले 75 का 80% निकालो, राइट। अभी 80% में से वो कितना माफ कर रहा है? 40%। तो इसका 40% निकालो, कितना अमाउंट आया? 24। कितना अमाउंट आया? 24,000, 24,000। ओके, एंट्री
क्लियर है? अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 24,000 24,000 24,000 24,000. Yes, any doubt? अरे क्लियर है ये वाला? shall I proceed further? Now entry number 5 या point number 5. Directors gave 30,000 to the company on non-refundable basis. Directors gave 30,000 to the company on non-refundable basis. Okay? इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले अभी आप मुझे बताइए चैप्टर का नाम क्या है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. कंपनी के अच्छे दिन चल रहे कि बुरे दिन चल रहे? बुरे दिन चल रहे, राइट? तो ये कंपनी का डायरेक्टर है. ये बंदा कौन है? कंपनी का डायरेक्टर है और ये दिलदार डायरेक्टर है. कैसा डायरेक्टर है? दिलदार. इज दैट क्लियर? और कंपनी को लाके वो चेक दे रहा है. कंपनी को लाके क्या दे रहा है? चेक दे रहा है और ऐसा बोल रहा है कि मुझे ये वापस भी नहीं चाहिए, मुझे ये वापस भी नहीं चाहिए. तो सबसे पहले कंपनी के पास चेक आ रहा है तो बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे. इज दैट क्लियर? और ये ऐसा बोल रहा है कि वापस भी नहीं चाहिए, वापस भी नहीं चाहिए. तो प्रॉफिट हो गया ना? तो प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट. इज दैट क्लियर? क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. ठीक है. अभी एक मिनट देखिए. मान लीजिए ये बंदा ऐसा बोलता कि ठीक है अभी मैं आपको चेक दे रहा हूं, राइट, लेकिन जब आपके अच्छे दिन आएंगे ना तब मुझे वापस कर देना. क्या बोलता वो? अच्छे दिन आएंगे तो वापस कर देना. तो वो केस में क्या हो रहा है कि वो दे रहा है, लेकिन क्या दे रहा है? एज अ लोन दे रहा है. एज अ क्या दे रहा है? लोन दे रहा है. तो हम लोग क्या एंट्री पास करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर्स लोन. क्या पास करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर्स लोन. इज दैट क्लियर? लेकिन मैंने बताया ना ये बंदा कैसा है? दिलदार है ना. क्या बोल रहा है? नॉन रिफंडेबल बेसिस. क्या बोल रहा है? मतलब मुझे वापस नहीं चाहिए. तो कंपनी का प्रॉफिट हो गया. मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट. क्लियर है ना? एंट्री क्या लिखा बोलिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. और अमाउंट डायरेक्टली दिया है ना उसमें 30,000, राइट? बैंक अमाउंट इज गिवन डायरेक्टली 30,000. ठीक है. Shall I proceed? Okay. Point number 6. Plant and machinery is reduced to 1,20,000. Plant and machinery is reduced to 1,20,000. सबसे मुझे पहले बोलिए मुझे प्लांट एंड मशीनरी एसेट है कि लायबिलिटी है? प्लांट एंड मशीनरी क्या है? एसेट है. और आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है. आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है ना? बोलिए प्रॉफिट के लॉस. लॉस. लॉस मतलब कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कैपिटल रिडक्शन डेबिट. कौन सा एसेट रिड्यूस हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी. क्या लिखेंगे बोलिए एंट्री? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. पहले एंट्री लिखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. अभी देखिए अमाउंट कैसे लिखेंगे. यहाँ पे 2 बोला है. क्या बोला है? 2 बोला है. तो मैं 1,20,000 लिख सकता हूँ क्या? नहीं ना. बाई दिया रहता तो लिखते, राइट? तो कैसे लिखेंगे? डिफरेंस निकालना पड़ेगा. बैलेंस शीट में कितना है? 4 लाख. बैलेंस शीट में कितना है? 4 लाख. 4 लाख से उसका वैल्यू कितना हो गया? 1,20,000. 4 लाख से वैल्यू कितना हो गया? 1,20,000. तो माइनस करेंगे ना? ओके. माइनस करेंगे कितना आएगा बोलिए? 2,80,000. कितना आएगा? 2,80,000. सो व्हाट वी विल राइट हियर? 2,80,000. एनी डाउट स्टूडेंट्स? Capital reduction account debit to plant and machinery. I hope everyone is comfortable with this chapter now. It is the last sum and out of the 4 chapter ये वाला chapter एकदम easiest chapter है. Okay? चलिए shall we proceed further? Point number 7. Point number 7. Okay. Point number 7 क्या बोल रहा है देखिए. Stock and debtors are reduced by 15,000 and 20% of the बुक वैल्यू. ओके. सबसे पहले स्टॉक एंड डेटर्स रिड्यूस हो रहा है ना. स्टॉक एंड डेटर्स बोलिए एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है. एसेट क्या हो रहा है? रिड्यूस. एसेट क्या हो रहा है? रिड्यूस. प्रॉफिट के लॉस. लॉस. लॉस मतलब कैपिटल रिडक्शन. अंतिमा अभी भी क्रेडिट बोल रही है.
अंतिमा यू लुक एट द पिक्चर नो नाउ. मैंने इसके लिए आपको वो पिक्चर भी लाके दिया कि आप एलसीडी याद रखिए. क्या याद रखना है? एलसीडी. क्लियर है? ओके बोलिए अभी. लॉस मतलब कैपिटल रिडक्शन डेबिट. ओके कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? कौन सा एसेट रिड्यूस हो रहा है? स्टॉक और डेटर्स. स्टॉक और डेटर्स. एंट्री बोलिए. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू डेटर्स. इज दैट क्लियर? एंट्री लिखिए पहले, फिर हम लोग अमाउंट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट राइट द एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एंड टू डेटर्स. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एंड टू डेटर्स. राइट नाउ कमिंग टू अमाउंट. अमाउंट हम लोग देखते हैं. देखिए क्या बोला है. स्टॉक को बाई 15,000 बोला है. क्या बोला है? बाई 15. तो बाई मतलब मैं लिख सकता हूं ना. स्टॉक में कितना लिखेंगे बोलिए? 15,000. स्टॉक में कितना लिखेंगे? 15. स्टॉक में 15,000 आ गया. डेटर्स का क्या बोला है? 20%. डेटर्स का क्या बोला है? 20%. तो डेटर्स का वैल्यू कितना है? डेटर्स का वैल्यू कितना है? 80 है. तो 80 पे लीजिए 20% कैलकुलेट कीजिए 16. तो ये दोनों अमाउंट मिल गया ना. और ये दोनों अमाउंट अगर मिल जाता है तो इसका टोटल कैपिटल रिडक्शन में आएगा 31,000. कैपिटल रिडक्शन में 31,000. ठीक है. एनी डाउट? चलिए शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट फर्नीचर एंड फिटिंग. किसके बारे में बोल रहा है? फर्नीचर एंड फिटिंग. फर्नीचर एंड फिटिंग का वैल्यू रिड्यूस हो गया. फर्नीचर एंड फिटिंग का वैल्यू रिड्यूस हो गया. राइट. तो फर्नीचर एंड फिटिंग सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है. एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है. एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है. एसेट का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो लॉस हो रहा है. लॉस मतलब कैपिटल रिडक्शन डेबिट. कैपिटल रिडक्शन डेबिट. इज दैट क्लियर? लॉस का वो पिक्चर याद रखिए एलसीडी. इज दैट क्लियर? तो एलसीडी में फिर आपको लास्ट में डी मिलता है. वहां पे फिर मिस्टेक आने की जरूरत नहीं है. ओके. सो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? कौन सा एसेट कम हो रहा है? फर्नीचर. कौन सा एसेट कम हो रहा है? फर्नीचर. तो लिखिए एंट्री क्या आएगा बोलिए? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिटिंग. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिटिंग. ठीक है. अभी देखते हैं कि अमाउंट कितना लिखना है. राइट. तो बाई बोला है ना, लिख सकते हैं ना कि माइनस करना है? इज दैट क्लियर? बाई 63,000. तो अमाउंट 63,000 है. एट दिया रहेगा तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है. एट मतलब उसका वैल्यू उतना हो गया. ओके. चलिए शैल वी प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग. राइट. लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड. एप्रिशिएट का मतलब होता है इंक्रीज करना. एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना. राइट. अभी मुझे ये बताइए लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है. तो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है ना. एसेट का वैल्यू. एप्रिशिएट का मतलब होता है इंक्रीज करना. राइट. एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है और एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट. प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट. कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग को. एंट्री बोलिए. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. लिखिए एंट्री. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. ठीक है. नाउ कमिंग टू द अमाउंट. अमाउंट कैसे निकालना है? देखिए उसने बोला है 300% से बढ़ गया. कितने से बढ़ गया? 300% से. तो एसेट साइड में जाइए. लैंड एंड बिल्डिंग देखिए कितना है? 3 लाख है ना. और 3 लाख इंटू 300% कीजिए. 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 300%. 9 लाख से बढ़ गया. कितने से बढ़ गया? 9 लाख. तो अमाउंट कितना लिखेंगे? 9 लाख. अमाउंट कितना लिखेंगे? 9 लाख. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. एनी डाउट? ओके. शैल वी प्रोसीड. नेक्स्ट क्या दिया है? पॉइंट नंबर 10. पॉइंट नंबर 10 में क्या बोला है? देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट. देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब एक एसेट ऐसा था जो रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है और उसको हमने 20,000 में बेच दिया. उसको हमने कितने में बेच दिया?
20,000 में बेच दिया। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर कितना है उसका? 10 है शायद, राइट? ओके, देखिए अब ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट को अगर मैं बेच रहा हूँ, राइट, अपने आप को क्या समझने का? कंपनी। क्या समझने का? कंपनी। एसेट अगर आप बेचेंगे तो आपको मिलेगा क्या? चेक मिलेगा, चेक मिलेगा ना? ओके, तो बैंक को क्या करेंगे? डेबिट। बैंक को क्या करेंगे? डेबिट। और वो एसेट है ना, अनरिकॉर्डेड है। क्या है? अनरिकॉर्डेड का मतलब है उसका वैल्यू जीरो है। उसका वैल्यू क्या है? जीरो है। इज इट क्लियर? तो जो जीरो एसेट था उसका अगर कुछ चेक मिल गया तो प्रॉफिट हो गया ना? प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। एंट्री क्या आएगा बोलिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है। अच्छा, अगर वो रिकॉर्डेड होता तो एसेट का नाम होता ना, तो हम लोग उसका नाम लिखते थे, लेकिन इसमें उसने क्या बोला है? अनरिकॉर्डेड है। क्या है? अनरिकॉर्डेड मतलब उसका वैल्यू क्या है? जीरो। इसीलिए मैंने क्या लिखा? कैपिटल रिडक्शन। क्या लिखा? कैपिटल रिडक्शन। एंट्री बोलिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अमाउंट क्वेश्चन में दिया है डायरेक्टली। कितने में बेचा है बोलिए? 20,000 में। कितने में बेचा है? 20,000 में। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। एनी डाउट? शैल वी प्रोसीड? चलिए, अगेन 11 पॉइंट इज टेलिंग अबाउट प्रेफरेंस शेयर। किसके बारे में बात कर रहा है वो? प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस टू ₹6 each, रिड्यूस टू ₹6 each। मैंने आपको बताया है, इफ नथिंग इज टोल्ड दैट मीन्स कौन सा वैल्यू चेंज करना है? फेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू चेंज करना है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू चेंज करेंगे तो ओल्ड वाला सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा? कैंसल। ओल्ड वाला सर्टिफिकेट कैंसिल। कितने वाला है वो? 10 वाला है ना? सो 10 रुपीज वाले शेयर को कैंसिल करेंगे और कितने रुपीज वाला इश्यू करना है? 6 रुपीज वाला। कितने रुपीज वाला? 6। ये जो कैंसिल कर रहे हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है। लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, कैंसिल करेंगे तो डेबिट। तो प्रेफरेंस शेयर डेबिट होगा ना? कितना % वाला प्रेफरेंस शेयर है वो? बैलेंस शीट में देख लेते हैं। हाँ, 9%। तो क्या एंट्री आएगा बोलिए? 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में ₹10, ब्रैकेट में ₹10 टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में ₹6, ब्रैकेट में ₹6। और जो प्रॉफिट हुआ है वो किस में जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। किस में जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है, एंट्री लिख लीजिए पहले, देन वी विल राइट द अमाउंट। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में 10 रुपीज टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में 6 रुपीज टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, चलिए अमाउंट कैसे लिखना है? देखिए क्वेश्चन में जाके पहले जो शेयर कैंसिल हुआ है ना उसका अमाउंट देख लेने का। कितना अमाउंट है? 4 लाख। कितना अमाउंट है? 4 लाख। वो 4 लाख यहाँ पे लिख दीजिए, राइट। एक बार ये 4 लाख यहाँ पे लिख दिया तो बाकी का अमाउंट मिल जाता है ना। 4 लाख को कितने से डिवाइड करेंगे बोलिए? 10 से। 4 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 40,000। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 6 से, क्योंकि नए शेयर का वैल्यू 6 है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2,40,000, 2,40,000। और कैपिटल रिडक्शन में क्या आएगा? इसका डिफरेंस। कैपिटल रिडक्शन में इसका डिफरेंस 4 लाख माइनस 2,40,000, 1,60,000। 4 लाख माइनस 2,40,000, 1,60,000। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? हाँ, 50% ऑफ द क्रेडिटर्स आर रिड्यूस टू द एक्सटेंड ऑफ 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। 50% ऑफ द क्रेडिटर्स आर रिड्यूस टू द एक्सटेंड ऑफ 50% ऑफ द बुक वैल्यू। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या होता है कि जो क्रेडिटर्स हैं, इज दैट क्लियर? कौन है? क्रेडिटर, राइट। एक बंदा आपको एज्यूम करना है क्या है? क्रेडिटर है। कौन है? क्रेडिटर है, और वो कुछ पैसा माफ कर रहा है ना, कुछ पैसा माफ कर रहा है, राइट। तो अभी मुझे बताइए क्रेडिटर कहाँ पे होता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है कि लायबिलिटी साइड में होता है? कहाँ पे होता है? लायबिलिटी साइड में होता है, राइट। तो लायबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है ना। और लायबिलिटी कम होगा तो क्या होगा बोलिए? प्रॉफिट। और प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। इज दैट क्लियर? और डेबिट किसको करेंगे? कौन माफ कर रहा है? क्रेडिटर। कौन माफ कर रहा है?
क्रेडिटर, एंट्री बोलिए, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। एंट्री लिखिए, फिर हम लोग अमाउंट का डिस्कशन करते हैं। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक्चुअली लायबिलिटी में 60,000 अमाउंट है, कितना अमाउंट है 60, लेकिन वो बंदा क्या बोल रहा है कि मैं पूरा 60,000 पे माफ नहीं करूंगा, उस 50% पे मैं डिस्काउंट दूंगा। किस पे डिस्काउंट दूंगा? 50% पे। तो पहले 60,000 का 50% निकालिए, कितना आया 30, कितना आया 30। उसमें से भी वो बोल रहा है कि उसका मैं 50% ही माफ करूंगा, उसका मैं 50% ही माफ करूंगा। तो 30,000 का 50% निकालिए, कितना होता है, कितना होता है 15,000, कितना होता है 15, ठीक है। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 15,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 15,000, ठीक है। एनी डाउट? मेरे ख्याल से सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अभी एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन में अपने को बोला है ओनली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्या बोला है? ओनली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये हम लोग ने हमारे सहूलत के लिए एंट्री पास किया है, समझ में आया? अगर आपने इतना ही सम एग्जाम में सॉल्व किया तो मार्क्स मिलेगा 0, मार्क्स मिलेगा 0, क्योंकि अगर एग्जामिनर खाली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पूछ रहा है तो आपको मार्क्स सिर्फ किसका देगा? कैपिटल रिडक्शन का ही देगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो आप बोलेंगे कि मैं तो पूरी एंट्री पास मैंने कर दिया है और मेरे को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये स्टेप पे अगर आपने वो सम रोक दिया तो मार्क्स कितना मिलेगा? 0, राइट। क्या बनाना है आपको? कैपिटल रिडक्शन। क्या बनाना है? कैपिटल रिडक्शन। बना सकते हैं? बनाइए जल्दी से।